students, today I will discuss integration by parts from class 12. क्लास 12 में जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है उसका एपिसोड 1 and 2 दो एपिसोड आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. नाउ आई एम गोइंग टू टेक थर्ड एपिसोड. In this class I will write some more formulas with regard to this by parts. Clear? Try to remember these formulas. Number 1 is e to the power ax sin bx. Now, proof is not necessary generally, but the answer is e to the power ax by a square plus b square and a sin bx minus b cos bx. Plus c. Another formula is e to the power ax cos bx dx. ये क्या होगा? e to the power ax by a square plus b square, same thing. And within bracket I write a cos bx plus b sin bx. I have already stated that there is a form elect. For two functions we need elect. ILATE, elect. Elect, I is inverse, IL logarithm, A algebra, T trigonometric function and E exponential function. यानी दो फंक्शन जो होगा बाय पार्ट्स में उसमें which will be the first function and which will be the second function, वो elect से हम लोग निकाल सकते हैं. Clear? So I'm starting the formula. I have already completed 24 sums in 2 episodes. Now today I will start from 25th sum. It is log 2 plus x square dx. Now in this case log 2 plus x square is the first function and 1. I have taken 1. It is the second function. Integration of u v dx. रूल मालूम है ना, याद रखना रूल को. u इंटीग्रेशन v dx माइनस d by dx of log 2 plus x square dx curly bracket close then dx x log 2 plus x square minus 1 by 2 plus x square
Then this one we have 2x. Again dx integral, we have x, and ultimately we have dx. X log 2 plus x square minus 2 x square. I write this way, x square plus 2 dx. X log 2 plus x square minus 2 x square plus 2 minus 2 by x square plus 2 dx. Again, x log 2 plus x square minus 2 x square plus 2 by x square plus 2 dx minus or plus I separate this two part, and 2 into 2 is 4, minus and minus is plus. Now I write here x log 2 plus x square minus 2 integral dx plus 4. There is a formula dx by x square plus a square. It is 1 by a tan inverse x by a. Last step, x log 2 plus x square minus 2x plus 4 by root 2 tan inverse x by root 2 plus c. Now it is complete. After doing any sum in your copy, just for a moment you follow the steps. To err is human, गलती इंसान से ही होता है. तो स्टेप जो है इसको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि मेरा भी कुछ गलती हो जाए. कमेंट में लिख देना कि सर आपका ये स्टेप जो है गलत हुआ है. आई थिंक इट्स ओके. ठीक है, देख लो. So I love this one. This is 25 fifth sum. Now I will start 26 number sum. Next sum is 26. It is x by 1 plus sin x. कैसे बनाएं? इस टाइप का सम जो होगा ना, इसमें तुम एक काम करना. 1 प्लस साइन एक्स है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करो. एक फॉर्म, अभी इसका फॉर्म नहीं है तो एक फॉर्म में आएगा.
अब जो स्टेप है ये हम लोग क्या करें, एक काम कर सकते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है इसको बाय पार्ट्स करते हैं, सेकंड पार्ट को वहीं छोड़ देते हैं। कुछ नहीं हुआ, इसको तोड़ना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx। अच्छा, ddx ऑफ sec x क्या होता है? sec x tan x। तो एंटी डेरिवेटिव क्या होगा sec x tan x का? sec x। यहाँ 1 होगा, यहाँ sec x। बहुत लंबा चौड़ा हो गया, इट्स क्वाइट लेंथी सम। देखिए आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या है। आई हैव सम डिफरेंट आंसर। मेरा जो आंसर है थोड़ा सा अलग है, बुक में ऐसा नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आंसर अलग आ सकता है। आंसर्स को एक साथ एक जगह हम ले जा सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी। स्टेप्स अगर ठीक है तो कोई बात नहीं। एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में अगर सॉल्व दिस बोल के अगर लिखेगा, इफ इट इज गिवन लाइक दिस, सो यू कैन सॉल्व दिस पे, आंसर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर एमसीक्यू टाइप होगा, यानी जो मेंस या एडवांस माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ऑप्शंस होगा, तो उसमें वो स्टेप जो है, मतलब जैसे सॉल्व करोगे, जंप करके ही ना सॉल्व करोगे, तो वो जो ऑप्शन है उसमें लाना पड़ेगा। वो बात भी अलग सा थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। सो आई हैव कंप्लीटेड। आगे जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लॉग है, तो लॉग m माइनस n मतलब लॉग m बाई n, लॉगरिथम का फॉर्मूला अप्लाई करके तो और थोड़ा सा
आगे जा सकते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी, यहां तक ठीक है। Next, 27. अच्छा प्रॉब्लम है। e to the power minus x cos 2x cos 4x dx। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम्स एंड प्रोडक्ट्स प्लस 11 का जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है 2 cos a cos b cos sum plus cos difference। Now compare this one with this, you will get a equals to -1 and b equals to 6।37 2 जा 74। वन बाई 10। I think you have understood the application of this formula here। तो शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा, नहीं तो हम यू भी करके फिर इसको और स्टेप्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। और बोर्ड्स का एग्जाम मतलब टाइम तो तुम्हारे लिए बहुत ही वाइटल होता है। कॉम्पिटिटिव तो छोड़ ही दो, वो तो 2 सेकेंड या 4 सेकेंड का टाइम होता है एक क्वेश्चन के पीछे। नेचुरली शॉर्टकट में ये सब फॉर्मूला जो है प्रैक्टिस रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
next problem is 28. Yeah, अच्छा problem. कैसे हम बना रहे हैं उसको देखो, सॉल्यूशन टेक्निक देखो. जस्ट प्रैक्टिस, और कुछ नहीं बोलेंगे हम, खाली प्रैक्टिस करो और याद रखो कि कैसे स्टेप्स हम बना रहे हैं. इफ यू रिमेंबर दो स्टेप्स यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. जो भी इस टाइप का प्रॉब्लम होगा या ये और इससे थोड़ा सा अलग कुछ प्रॉब्लम होगा तो सॉल्व जो है तुम्हारे हो सकता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू प्रैक्टिस दिस सम. Sum number 29. Let दो फंक्शन आ गया, u v z आगे होगा.
2x minus 1 plus c. Clear? Next, e to the power sin x sin 2x dx. Let z equals to sin x. सेम इससे पहले जो सब बनाए थे उसी टाइप का है। Let me see the answer. Okay, it's right. टफ कुछ नहीं है, खाली वो sin 2x जो है उसको एक्सपेंड करके सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है उसको अप्लाई किए हैं एंड आई हैव सॉल्व द प्रॉब्लम. क्लियर? Next, ये जो प्रॉब्लम है इसमें कॉम्प्लिकेसी ज़्यादा है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस हटाना पड़ेगा.
instead of z I can write sin inverse x, and here we have x equals to sin z. So what about cos z? Cos z is root over 1 minus sin squared z. That means 1 by root over x, 1 minus x square. And again sin z means x. देखो कॉम्प्लिकेसी जो था वो प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सॉल्व हो गया, फिर बाय पार्ट्स करके ये आंसर हम जो बना दिए. क्लियर? प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस विल सॉल्व एवरी प्रॉब्लम. कुछ भी हो, जितना भी बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर प्रैक्टिस ठीक से कोई भी बच्चा करेगा तो कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं भी चल जाएगा. Next, 32. X squared tan inverse x by 1 plus x squared dx. I am solving this problem in one of the ways. इसका solution जो है बहुत सारा टेक्निक हो सकता है. कैलकुलस में ही एक बोल सकते हो एक फन मजा है कि एक प्रॉब्लम को हम बहुत तरीके से बना सकते हैं. इसमें से एक तरीका है ये. दिस इज वन ऑफ द वेज. sec z. Sec square theta equal to 1 plus tan square theta. So sec theta equals to root over 1 plus tan square theta.
से कर सकते हैं तो कर दो, इसका और एक स्टेप आगे होगा। तो यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक ठीक है, ये जो आंसर है ये ठीक है। लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली तुम करोगे, अल्टीमेटली उसको कन्वर्ट कर दोगे ओरिजिनल फॉर्म में, यानी x में जो है उसको आंसर x में ही लाना पड़ेगा। अगर z में छोड़ देते हो तो उसमें तुम्हारा एक हाफ या 1 मार्क्स जो है कट जाएगा, स्टेप मार्किंग में बोर्ड्स में कट जाएगा। Sum number 33. Two minus sin 2x by 1 minus cos 2x e to the power x पहले। ये भी एक प्रॉब्लम है, मतलब फॉर्मूला है, फॉर्मूला है e टू द पावर x ब्रैकेट में होगा fx प्लस f डैश x dx एंड इट इज e टू द पावर x fx प्लस c। लेकिन यहाँ पे हम जो है प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाएंगे। याद रखना कि ये cot x जो है कोई भी एक फंक्शन को fx पकड़ो और उसके बाद उसका dy dx निकालो। जैसे cot x का ddx क्या होता है, cos x स्क्वायर x। तो एक्सपैंड हम लोग करेंगे, cos x स्क्वायर x को भी हम लोग पाई पार्ट्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। e टू द पावर x cot x को रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। It is better to keep this one in this form। ये एक्सपैंड करने से अच्छा हो, क्योंकि fx को अगर एक्सपैंड करेंगे तो f डैश x आ जाएगा, तो अच्छा होगा।
कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो अल्टीमेटली ये प्लस हो जाएगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि एफ डैश एक्स को हम लोग वही फॉर्म में रखेंगे और एफ एक्स को अगर हम एक्सपैंड करते हैं यू भी में तो एफ डैश एक्स अल्टीमेटली आ जाएगा। क्लियर? ऐसे बना सकते हो, या यूजिंग द फॉर्मूला e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी, वो लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, एक्सपैंड करके भी एक देख लेना। नेक्स्ट 34, तो इसी टाइप का प्रॉब्लम है। e टू द पावर x tan इनवर्स x plus 1 by 1 plus x square dx, and if I say that it is fx, so it is f dash x, it is f dash x, so ultimately the answer will be e to the power x tan inverse x plus c using आंसर देखते हैं इसका। या इट्स राइट। देखो क्वेश्चन लिखे फिर आंसर लिख दिए, खाली यूजिंग द फॉर्मूला। ये शॉर्ट मेथड ठीक है, लेकिन ये डिपेंडेंट है इस टीचर के ऊपर जो एक्चुअली कॉपी चेक जो करेगा। बोर्ड एग्जाम या स्कूल एग्जाम में अगर कॉपी चेक होता है, इसमें अगर 3 मार्क्स है तो स्टेप बाय स्टेप तुमको करना होगा। ऐसे शॉर्ट में लिख दोगे तो आई थिंक द टीचर विल नॉट गिव यू द मार्क्स, फुल मार्क्स। हो सकता है कि नंबर नहीं दे, लेकिन एमसीक्यू अगर क्वेश्चन है तो लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। Next problem, e to the power x sin 4x minus 4 by 1 minus cos 4x. 35. E to the power x sin 4x minus 4 by 1 minus cos 4x. एक बार देख लेते हैं प्रॉब्लम ठीक है कि नहीं। sin 4x minus 4 by 1 minus cos 4x, ठीक है।
cot 2x अगर fx है तो f dash x हो जाएगा -2 cosec square 2x। तो यहाँ पे भी हम लोग e to the power x cot 2x plus c, we can write this using the formula. Let me see the answer. Yeah, it's right. 36, problem number 36. अब बनाएंगे 36. E to the power x then root over 1 minus x square sin inverse x plus 1 by root over 1 minus x square. देखो वही प्रॉब्लम e to the power x fx plus f dash x. If it is fx, then f dash x is this. So we can write using e to the power x fx plus f dash x dx equals to e to the power x fx plus c. Here, so I have already done 36 number problem. Seven. E to the power x cos x plus sin x by cos square x dx. Same. If I say that y equals to sec x, then dy by dx will be sec x tan x.
alternative we have e to the power x sec x plus c using the formula e to the power x fx plus f dash x dx equals to e to the power x fx plus c. Eight. I think it's little different. कुछ अलग है इसमें. ब्रैकेट को ओपन करके देखते हैं क्या आता है. माइनस e to the power x by x माइनस 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 to the power x log x plus c. क्लियर. तो थोड़ा सा अलग था 1 by x स्क्वायर क्योंकि log x का ddx होता है 1 by x, यानी फर्दर उसको इंटीग्रेट करना होगा तब जाके 1 by x स्क्वायर आ गया. सो 38 सम्स तक हम बनाए. एपिसोड 3 है ये. 39 से अगले एपिसोड में बनाएंगे. जो नए स्टूडेंट हो सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर करना. कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखना, हम आंसर देंगे.